The Tragedy of Antony and Cleopatra, विलियम शेक्सपियर। पेशकश सैयद इरफान अली। मुफ्त डाउनलोड करें www.server555.com। 1. Cleopatra, Mark Antony, Philo, Iris, Octavia, Demetrius, Charmian, Alexis, Manus, Soothsayer, Sextus Pompeius, Anubarbus, Octavius, Mardian, Menecrates, Celius, Agrippa, Scarus, Lepidus, Ventidius, Euphronius, Tyrius, Eros, Taurus, Alexandria, Caesarion, Gallus, Messina, Ptolemaic, Sardinia, Scarus, Sicily, Ionia, Lydia, Philippi, Ptolemy, Sicyon, Taurus, Actium। یہ دور ہے جولیس سیزر کے بعد کا، اور اس وقت رومن امپائر، روما کی سلطنت کے 3 حاکم ہیں، یعنی یہ سلطنت 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ ان حاکموں میں شامل ہیں آکٹیویس سیزر، جو جولیس سیزر کا منہ بولا بیٹا اور بھتیجا تھا۔ یہ قابل تو ہے مگر جنگی کاموں میں اینٹنی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے تعلقات ہمیشہ ہی اینٹنی سے کشیدہ رہے۔ لیپیڈس، جو سیزر کا ایک سالار تھا، یہ نیک اور شریف انسان ہے، دھیما اور موقع شناس ہے، اور ہر موقع پر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اینٹنی اور سیزر صلح کر لیں۔ اور تیسرا مارک اینٹنی، جو اس وقت سلطنت کے کاموں اور جنگی مارکوں میں سب سے آگے ہے۔ یہی وہ بہادر انسان ہے جس نے فلپائی کی جنگ میں جولیس سیزر کے قاتلوں بروٹس اور کیسیس کو ہرایا۔ وہ بہادر تو ضرور ہے مگر عیاشی اور رنگیلا پن اس کی ذات کا حصہ ہے۔ وہ انتہا درجے کا حسن پرست اور جذبات کو عقل پر فوقیت دیتا ہے۔ فتوحات کے بعد مشرقی صوبوں کی دیکھ بھال کے سلسلے میں مارک اینٹنی اس وقت مصر میں موجود ہے اور وہاں کی ملکہ کلیوپیٹرا کے عشق میں پاگل پن کی حد تک دیوانہ ہو چکا ہے۔ کلیوپیٹرا ایک حقیقی کردار ہے جس کا دور تھا 30 تا 69 بیفور کرائسٹ۔ اس سے پہلے بھی اس نام کی کئی دوسری عورتیں تھیں، مگر یہ پری صورت، حسین و جمیل عورت حسن کی ایک ایسی تصویر تھی جس کی اس دنیا میں مثال ممکن نہیں۔ ٹولمی 11 اس کا باپ تھا۔ 17 برس کی عمر میں اس دور کے دستور کے مطابق اپنے چھوٹے بھائی ٹولمی 12 سے اس کی شادی ہوئی، جو بعد میں دریائے نیل میں ڈوب کر ہلاک ہوا۔ اس نے اپنے بھائی کے خلاف بغاوت بھی کی اور جولیس سیزر کی مدد سے فتح یاب ہو کر مملکت کی سربراہ بنی، اگرچہ یہ روم کے احکامات کے اندر ہی رہتی تھی۔ پہلے بھائی کے مرنے پر اس کی شادی دوسرے چھوٹے بھائی ٹولمی 13 سے ہوئی۔ وہ جولیس سیزر کی محبوبہ تھی، اور کہا جاتا ہے کہ سیزیرین یا ٹولمی 14 جو کہ اس کا بیٹا تھا، اس کا باپ جولیس سیزر ہی تھا۔ جولیس سیزر کی موت کے بعد 42 بیفور کرائسٹ میں مارک اینٹنی مصر میں پہنچا۔ حقیقت پر مبنی اس کہانی کو شیکسپیئر کے علاوہ جن لوگوں نے لکھا ان میں ڈرائیڈن کی دی ورلڈ ویل لاسٹ یا آل فار لو اور جارج برنارڈ شاء کی سیزر اینڈ کلیوپیٹرا نمایاں ہیں۔ اینٹنی مصر میں ملکہ کلیوپیٹرا کے عشق میں تو گرفتار ہے، مگر اسے ملک کی عزت اور فرض کا بھی خیال ہے، اور اس کے دل میں محبت اور فرض کے درمیان جنگ جاری ہے۔ اسے معلوم ہے کہ کلیوپیٹرا اسے دھوکہ دے رہی ہے، اور روما کے معاملات بھی اسے تنگ کر رہے ہیں، کیونکہ سلطنت کے حالات اس کے عشق کی وجہ سے بے حد خراب ہو چکے ہیں۔ ڈرامے کے آغاز میں اسکندریہ یا الیگزینڈریا میں واقع ملکہ مصر کلیوپیٹرا کے محل میں اینٹنی کے 2 دوست ڈیمیٹریس اور فائلو آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارا سپہ سالار جو کبھی بہادروں کی طرح میدان جنگ میں لڑتا تھا، اب ایک سانولے رنگ کی آوارہ اور گھٹیا عورت کے پیچھے پاگل ہو چکا ہے، اور دیکھو کہ دنیا کا یہ تیسرا ستون اس عورت کے آگے بالکل بے بس نظر آ رہا ہے۔ اینٹنی اور کلیوپیٹرا بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ کلیوپیٹرا پوچھتی ہے کہ اینٹنی آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ اینٹنی کا جواب تھا کہ اس قدر زیادہ کہ نئے زمین و آسمان اگر تخلیق ہوں تو یہ محبت ان میں سما سکے گی۔ روم سے قاصد پیغام لے کر آتے ہیں۔ اینٹنی ان سے ملنے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ اس کے نزدیک کلیوپیٹرا زیادہ اہم ہے، جبکہ کلیوپیٹرا طنزیہ لہجے میں کہتی ہے، اینٹنی آپ قاصدوں سے مل لیجئے، ممکن ہے فلویا اینٹنی کی حقیقی بیوی یا پھر
कम उम्र सीजर या दोनों के पैगाम आए हों और हुक्म दिया गया हो कि फौरी तौर पर वापस आ जाओ वरना सजा दी जाएगी। एंटनी, जो कि मोहब्बत में पागल हो रहा था, उसका चेहरा क्लियोपेट्रा की बात सुनकर सुर्ख हो गया और बोला कि चाहे रोम दरिया में डूब जाए या उसकी अजीम शान महराब जो बहुत मुश्किल से तामीर की गई थी टूट जाए, मुझे क्या परवाह। अब मेरी दुनिया और सल्तनत यही है। हमारा इश्क दुनिया में सबसे अजीम है और हमारे लिए यही सबसे अहम भी है। तो हमें चाहिए कि जिंदगी की हर साथ को अपने प्यार से लुत्फ अंदोज करें। क्लियोपेट्रा फिर कहती है कि कासिदों से मिल लिया जाए, मगर एंटनी कहता है कि आज किसी कासिद से मुलाकात नहीं की जाएगी और क्लियोपेट्रा की फरमाइश के मुताबिक वो आज रात सिर्फ उसके शहर की गलियों की सैर करेंगे और लोगों को देखेंगे। डिमीट्रियस और फाइलो दोबारा गुफ्तगू करते हैं कि एंटनी बाज़ औक़ात अपने मर्तबे से गिरी हुई हरकतें करता है और उसने इसीलिए सीजर के कासिद से मिलने से इनकार कर दिया। उधर रोम में जो एंटनी के इस तरह के रवैये की बातें करते हैं, लोग उनको अफवाहें समझते हैं, मगर ये बातें तो हकीकत हैं। मगर हमें कल के लिए अच्छी सोच रखनी चाहिए कि हालात बेहतर हो जाएंगे। क्लियोपेट्रा के महल के दूसरे हिस्से में शार्मियन, आयरस, अलेक्सिस और एनोबार्बस एक नजूमी से अपनी किस्मत का हाल मालूम कर रहे हैं। नजूमी कहता है कि वो कुदरत के ख़त्म न होने वाले राज का कुछ हिस्सा मालूम कर सकता है। वो पेशन गोई तो कर सकता है मगर ना तकदीर बना सकता है और ना ही उसे तब्दील कर सकता है। वो सब मजाक करते हैं। क्लियोपेट्रा एंटनी को ढूंढते हुए वहां पर आ जाती है। वो कहती है कि एंटनी का मिजाज बहुत अच्छा था मगर रोम के मुतालिक सोचने लगे। वो अपने खिदमतगुजार अलेक्सिस को कहती है कि एंटनी को तलाश करके लाओ। जवाब आता है कि एंटनी तशरीफ ला रहे हैं। ये सुनकर क्लियोपेट्रा नखरा दिखाती है और ये कहकर कि हम उनसे नहीं मिलना चाहते वहां से चली जाती है। एंटनी अपने मुलाजमीन और रोमी एलची कासिद के साथ आता है। कासिद उसको बताता है कि आपकी बीवी फल्विया ने आपके भाई से जंग की इब्तिदा की मगर जल्द ही उनकी दोस्ती हो गई और उन दोनों ने फिर सीजर से जंग की जिसमें सीजर ने आसानी से फतह हासिल कर ली और इटली से उनको निकाल दिया। ज्यादा बुरी खबर यह है कि दरियाए फरात को अबूर करके एशिया पर कब्जा हो चुका है और सीरिया, शाम से लेकर आयोनिया और लीडिया पर भी कब्जा हो चुका है। कासिद बात करते करते चुप हो जाता है। एंटनी कहता है कि घबराओ नहीं, क्योंकि सच्ची बात ख्वाह ये मेरी मौत का फरमान हो को मैं अच्छे तरीके से सुनूंगा। मुझे बताते रहो कि क्लियोपेट्रा को रोम में किन अल्फाज से याद करते हैं और ये भी बताओ कि मेरी बीवी फल्विया मुझे कैसे गालियां देती है, क्योंकि इन बातों की खली से मेरे दिमाग में जो बुराइयां हैं उनको साफ होने का मौका मिलेगा। एंटनी मजीद कहता है कि मुझे इस पागल मोहब्बत से छुटकारा पाना होगा वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। एक और कासिद सिक्योन से पैगाम लाता है कि एंटनी की बीवी फल्विया मर गई है। एंटनी सबको जाने का कहता है और फल्विया को याद करता है कि जिंदगी में उसने फल्विया की कदर ना की, मगर जब वो इस दुनिया में नहीं है तो मुझे उसकी कदर मालूम हुई है, मगर अब वो वापस नहीं आ सकती। मुझे इस जादूगरनी मलका मिस्र क्लियोपेट्रा से पीछा छुड़ा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सी परेशानी और मुश्किलात मेरी आराम तलबी और इश्क की वजह से पैदा हो चुकी हैं। वो अपने दोस्त एनोबार्बस से मुखातिब होता है कि वो मिस्र को जल्द अज जल्द छोड़ने का इरादा रखता है। एनोबार्बस तंजिया कहता है कि क्लियोपेट्रा ने अगर एंटनी के जाने की खबर सुनी तो वो उसी वक्त मर जाएगी, क्योंकि उसने पहले भी ऐसी ही बल्कि इससे छोटी बातों पर मर जाने की बात की है और इसकी आंसू और आहें तो तूफानों से भी ज्यादा शदीद हैं। जहां तक ताल्लुक है आपकी बीवी फल्विया के गुजर जाने का, तो अब आप नई शादी कर सकते हैं, यानी पुराने कपड़े खराब हो जाएं तो नए ले लेने चाहिए, लिहाजा ये तो कोई गम की बात नहीं। मजीद ये कि क्लियोपेट्रा से आपके जो मरासिम चल रहे हैं उनकी वजह से आपका जाना मुमकिन नहीं है। एंटनी कहता है कि यह मजाक का वक्त नहीं है, बल्कि अब फल्विया की मौत के बाद हमारा रोम पहुंचना बहुत जरूरी है। मेरे दोस्त बार बार मुझे वहां के खतरनाक हालात का लिख रहे हैं। सेक्सटस पोम्पियस ये कह रहा है कि वो बहुत ही ताकतवर है, समंदर में वो कब्जा कर चुका है और जल्द ही तमाम दुनिया पर कब्जे का दावा भी कर देगा।
अवाम की तरफ से पॉम्पी द ग्रेट के दर्जात अब सेक्सटस को मिल रहे हैं। अहम अफराद पर यह वाज़ा कर दिया जाए कि हम बहुत जल्द यहाँ से रवाना हो जाएंगे। मैं क्लियोपेट्रा को भी अपने जाने की ज़रूरत का एहसास दिलाऊंगा। वो चले जाते हैं। क्लियोपेट्रा अलेक्सिस से कहती है कि जाओ और एंटनी को तलाश करो। अगर उन्हें परेशान देखो तो कहना कि मैं नाच रही हूँ, और अगर वो खुश हों तो कहना कि मैं बीमार हूँ। उसके जाने के बाद शार्मियन कहती है कि अगर आप वाकई चाहती हैं कि एंटनी आपसे उतनी ही मोहब्बत करें जितनी आप उनसे करती हैं, तो उनकी किसी बात की मुखालफत ना करें, बल्कि हर हाल में उनका हुक्म मानें। क्लियोपेट्रा कहती है कि ये तो बेवकूफ़ाना मशवरा है। एंटनी आता है तो क्लियोपेट्रा बीमारी का ड्रामा करती है और कहती है कि एंटनी अपनी बीवी के कहने पर वापस जाना चाहते हैं, और क्लियोपेट्रा का तो एंटनी पर कोई हक ही नहीं है। मैं तो पहले ही जानती थी कि आप बेवफाई करेंगे। मुझे इल्म था कि आपकी कस्में और वादे सब झूठे हैं। अगरचे मैं अब भी वही हूँ, मगर दुनिया का सबसे बड़ा सिपाही सबसे झूठा इंसान बन रहा है। बहाने बनाने की क्या जरूरत है, जाइए। एंटनी क्लियोपेट्रा को बताता है कि उसकी बीवी फल्विया मर चुकी है। इटली के अंदर जंग की सूरत हाल है। जो लोग हमारी हुकूमत से फायदा ना उठा सके वो हमारे खिलाफ हो रहे हैं। सेक्सटस पोम्पियस रोम पर हमला करने वाला है क्योंकि लोग उसके तरफदार हो रहे हैं। फल्विया की मौत का खत वो क्लियोपेट्रा को दे देता है ताकि वो यकीन कर ले, मगर वो कहती है कि आप फल्विया के लिए आंसू बहा लो और कहो कि वो आंसू क्लियोपेट्रा के लिए थे। ये सब तो आपकी बनावट और दिखावा है। एंटनी गुस्से में आ जाता है, मगर फिर भी कहता है कि अगरचे वो जा रहा है, मगर वो जाने के बाद भी क्लियोपेट्रा के पास ही रहेगा और क्लियोपेट्रा उसके पास। रोम में ऑक्टेवियस सीजर को उसके महल में खत मिला है जिसमें लिखा है कि एंटनी मिस्र में शराब नोशी कर रहा है और अय्याशी में मसरूफ होकर दुनिया भर की बुराइयों का मजमुआ बन चुका है। लेपिडस कहता है कि ये बुराइयां तो इंसान में पैदाइशी होती हैं जिनको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, मगर दरअसल वो एंटनी खूबियां भी बहुत रखता है। सीजर कहता है कि फारिग वक्त में तो अय्याशी अच्छी लगती है, मगर ये वक्त तो बहुत मुश्किल और जंग का है, इसमें माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। कासिद आकर कहता है कि हालात से हर घंटे के बाद ताज़ा तरीन इतलात दी जाएंगी। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि सेक्सटियस पोम्पियस को समंदर में बढ़तरी हासिल है। सीजर कहता है कि लोग पोम्पियस के साथ हैं क्योंकि वो पानी में उगने वाले पौधों की तरह होते हैं जो पानी की हरकत के साथ हरकत करते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा कासिद कहता है कि मैनेक्रेटीज और मैनस नामी समुद्री लुटेरे अपने जहाज़ों से इटली पर हमला कर रहे हैं और हर तरह के समुद्री जहाज़ों को कब्जे में ले रहे हैं। पॉम्पी के नाम से लोग इस कदर खौफजदा हैं कि मुकाबला नहीं करते। ऑक्टेवियस सीजर गुस्से में कहता है कि एंटनी, तूने जिंदगी में बहुत से मुश्किल हालात देखे मगर कभी भी सब्र और हिम्मत का दामन नहीं छोड़ा, मगर इस वक्त तुझे चाहिए कि अय्याशियों से पीछा छुड़ाकर वापस रोम आ जाओ ताकि हम इकट्ठे लड़ाई करें और पॉम्पी को सबक सिखाएं। लेपिडस और सीजर कहते हैं कि आओ हालात का जायजा लेते हैं कि इस वक्त सूरत हाल को कैसे संभाला जा सकता है। वो जाते हैं www.server555.com। The Tragedy of Antony and Cleopatra, विलियम शेक्सपियर। पेशकश सैयद इरफान अली। मुफ्त डाउनलोड करें www.server555.com। 2. क्लियोपेट्रा शार्मियन से कहती है कि मुझे कुछ पीने को दो ताकि मैं एंटनी की जुदाई के वक्त को सोकर गुजारूं। वो ख्वाजा सरा मार्डियन से पूछती है कि क्या उसे भी ख्वाहिश महसूस होती है। वो कहता है कि बहुत ज़्यादा, मगर वो पाकबाज रहने पर मजबूर है। वो महसूस कर सकता है कि व्हाट वीनस डिड विद मार्स। शार्मियन से क्लियोपेट्रा पूछती है कि इस वक्त एंटनी क्या कर रहा होगा। अलेक्सिस आता है और कहता है कि इस मोती पर एंटनी ने बहुत ज़्यादा बोसे लिए और ये आपके लिए भिजवाया है और कहा कि आपके लिए नए तोहफे वो सल्तनतें होंगी जो वो फतह करेगा। वो उस वक्त ना बहुत खुश थे और ना गमगीन। क्लियोपेट्रा एंटनी की तारीफ करती है कि अजीम लोग हमेशा म्याना रो ही रहते हैं। वो अलेक्सिस से पूछती है कि क्या उसके कासिद रास्ते में मिले। वो जवाब देता है कि बहुत ज़्यादा, 20 several messengers। मगर इतने ज़्यादा कासिद आपने क्यों भेजे।
क्लियोपेट्रा जवाब देती है कि जिस दिन वो एंटनी को कासिद ना भेजे उस दिन लोग भकारी की मौत मरें। वो शारमियन से पूछती है कि जितना वो एंटनी को चाहती है क्या उतना सीजर को चाहती थी। शारमियन सीजर की तारीफ करती है और उसे बहादुर कहती है तो क्लियोपेट्रा उसे मना करती है कि एंटनी तो सीजर के मुकाबले में अजीम है। शारमियन कहती है कि वो तो वही कह रही थी जो मलका क्लियोपेट्रा कभी सीजर की तारीफ में कहती थीं। क्लियोपेट्रा जवाब देती है कि वो तो बचपन की बातें थीं। अब मैं एंटनी से मोहब्बत करती हूँ और उसे रोज खत लिखना मेरा फर्ज है। मेसिना में जंग जैसे हालात हैं और पोम्पी, मैनिक्रिटिस और मेनस गुफ्तगू कर रहे हैं। पोम्पी कहता है कि हम इंसाफ करने वाले हैं और देवता हमें फतह देंगे और इसलिए भी फतह हमारी होगी कि लोग हमें दिल से मोहब्बत करते हैं। मार्क एंटनी तो अय्याश हो चुका है और लड़ने की ताकत खो बैठा है। सीजर को दौलत जमा करने से फुर्सत नहीं रह गया लैपिडस, तो इसका काम सीजर और एंटनी की तारीफें करना और उन दोनों का काम लैपिडस की तारीफें करना ही रह गया है। दिल से न वो उनकी कदर करता है और न वो उसकी। समंदर में मेरी ताकत ज्यादा है तो अब मेरी फतह यकीनी है। मैनिक्रिटिस कहता है कि सीजर और लैपिडस एक बड़ी फौज के साथ जंग करना चाहते हैं। पोम्पे उसे पागलपन करार देता है क्योंकि इसके ख्याल में वो तो एंटनी का इंतजार रोम में कर रहे हैं। वो कहता है कि ए क्लियोपेट्रा, तो अपने हुस्न से एंटनी को पागल बना दे ताकि उसका ख्याल रोम की तरफ ना जाए। वेरियस खबर देता है कि उसकी इतलात के मुताबिक एंटनी जब से मिस्र से रवाना हुआ था तो उसे अब तक रोम पहुंच जाना चाहिए। पोम्पी कहता है कि खबर अच्छी नहीं और बहुत संजीदा है, मगर इस बात की जरूर खुशी है कि उसने हमें इतनी अहमियत दी कि हमसे जंग करने पर अपनी अय्याशियों को कुर्बान करके और मिस्र और क्लियोपेट्रा को छोड़कर चल दिया, जबकि वो अपने साथियों से कहीं ज्यादा मजबूत और ताकतवर है। मेनस कहता है कि इन लोगों की आपस में लड़ाइयां हैं। फल्विया, एंटनी की बीवी, ने सीजर को शिकस्त देनी चाहिए और एंटनी का भाई भी सीजर से बुग़्ज़ रखता था। पोम्पी जवाब देता है कि अगर हम जैसी ताकत से लड़ाई ना होती तो वो जरूर आपस में लड़ पड़ते, मगर अब वो मिलकर हमसे लड़ेंगे तो आओ हम लड़ाई की तैयारी करें। वो जाते हैं। रोम में लैपिडस के मकान में वो एनोबार्बस को कहता है कि वो एंटनी से कहे कि वो आराम, प्यार और मोहब्बत से गुफ्तगू करे। वो जवाब देता है कि शायद एंटनी सीजर से गुस्से में गुफ्तगू करे। लैपिडस के ख्याल में अहम बात के सामने गैर अहम बात को नजरअंदाज कर देना चाहिए और पुराने झगड़ों को भूल जाना चाहिए। ऑक्टेवियस सीजर, मैसिनस और एग्रिपा दाखिल होते हैं। एंटनी भी आता है। लैपिडस उन सब से कहता है कि वक्त बहुत अहम है, आपस में लड़ने के बजाय आराम से बात की जाए। एंटनी सलाम दुआ के बाद कहता है कि मिस्र में मेरी जाती मसरूफियात पर सीजर को परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। सीजर कहता है कि एंटनी की बीवी और भाई ने उसके खिलाफ जंग की और एंटनी का नाम लेकर जंग की। एंटनी कहता है कि मैंने भाई को जंग से मना किया मगर उसने मेरा हुक्म तस्लीम ना किया। जहां तक ताल्लुक है मेरी बीवी का, उस जैसी सख्त मिजाज औरत को काबू में रखना मेरे लिए नामुमकिन था। सीजर कहता है कि मैंने इस बारे में आपको मिस्र में खतूत लिखे मगर आप दादे ऐश दे रहे थे और मेरे कासिदों को आपने धक्के देकर अपने महल से निकाल दिया। एंटनी कहता है कि वो कासिद उस वक्त जबकि 3 बादशाह ज़ियाफत में शरीक थे बगैर इजाजत अंदर आया, जिसकी मैंने दूसरे दिन ही आपसे माफी मांग ली थी। और अब इस बात को मसला ना बनाएं ताकि हम इकट्ठे दुश्मन का मुकाबला करें। मैं अपनी अय्याशी की वजह से अपने वादे निभाने में गफलत कर बैठा और शर्मिंदा हूँ, बल्कि मेरी बीवी ने भी शायद यही समझकर लड़ाइयाँ की होंगी कि ये सुनकर मैं मिस्र छोड़ दूँ। बाकी लोग कहते हैं कि अगर एंटनी और सीजर मिल जाएं तो पोम्पी का खात्मा यकीनी है। एग्रिपा ने मशवरा दिया कि एंटनी की बीवी मर चुकी है और सीजर की बहन ऑक्टेविया की शादी अगर एंटनी से हो जाए तो आप दोनों में मोहब्बत बहुत बढ़ सकती है। ऑक्टेविया बहुत हसीन पाक दामन है और एंटनी बहुत आला इंसान। एंटनी कहता है कि उसकी अभी क्लियोपेट्रा से शादी नहीं हुई और वो भी सीजर की बहन ऑक्टेविया से शादी का ख्वाहिशमंद है। सीजर अपनी बहन का हाथ एंटनी के हाथ में दे देता है। एंटनी खुश है और कहता है कि वो पहले पोम्पी का शुक्रिया अदा करेगा ताकि माजी के एहसानात का बदला चुका दे,
फिर लड़ाई होगी। लैपिडस एंटनी को बताता है कि पॉम्पी की ताकत बहुत ज्यादा है। एंटनी की ख्वाहिश है कि जंग से पहले उसकी ऑक्टेविया से शादी हो जाए। सीजर के दोस्त एग्रिपा और मैसिनस एंटनी के दोस्त एनोबार्बस से गुफ्तगू करते हैं कि क्या मिस्र में सिर्फ 12 लोगों का नाश्ता 8 जंगली सूअरों पर मुश्तमिल होता था। एनोबार्बस जवाब देता है कि सिर्फ यही नहीं, बल्कि क्लियोपैट्रा जैसी चीज भी नाश्ते में होती थी, जिसने पहले ही नजर में एंटनी के दिल पर कब्जा कर लिया। जब वो दरिया में अपनी कश्ती पर आ रही थी तो उसकी शान ऐसी थी जैसे वो इस दुनिया की मखलूक ना हो, और तमाम दुनिया ही उसकी एक झलक देखने की तमन्ना रखती थी। एंटनी ने उसे खाने की दावत दी, मगर उसने कहा कि दावत वो देगी। औरतों के करीब जाने से दिल भर जाता है, मगर उस क्लियोपैट्रा से जितना ताल्लुक कायम किया जाता है उसी कदर ज्यादा उसके करीब जाने की ख्वाहिश पैदा होती है। यही वजह है कि एंटनी उससे कभी भी ताल्लुकात नहीं तोड़ सकेंगे। वो लोग मजीद कहते हैं कि इस औरत क्लियोपैट्रा को देखकर सीजर ने भी अपनी तलवार एक तरफ रख दी थी और उससे जिनसी ताल्लुक कायम कर लिया था। दूसरी तरफ सीजर की बहन ऑक्टेविया की तारीफ की जाती है कि वो बहुत ही हसीन है, अक्लमंद और पाक दामन भी। अगर एंटनी इन चीजों की कदरदान है तो उसे ऑक्टेविया को पसंद करना चाहिए। वो जाते हैं। ऑक्टेवियस सीजर, उसकी बहन ऑक्टेविया और मार्क एंटनी बातें कर रहे हैं। एंटनी ऑक्टेविया से कहता है कि अगर आपने मेरे मुतालिक अफवाहें सुनी हैं तो मुझे बुरा ख्याल ना करना, बल्कि अब मैं बहुत मोहतात होकर कदम रखूंगा और सिर्फ मेरे फ्राइज ही मुझे तुमसे दूर रख सकेंगे। ऑक्टेविया कहती है कि दूरी में वो हर वक्त उनके लिए दुआएं करेगी। सीजर और ऑक्टेविया के जाने के बाद सूटसेयर नजूमी एंटनी को कहता है कि आपको सीजर से दूर मिस्र चले जाना चाहिए, क्योंकि सीजर के सामने आपको हमेशा शिकस्त होगी। नजूमी के जाने के बाद एंटनी अपने आप से कहता है कि ये बात बिल्कुल सच है कि मैं हमेशा ही सीजर के सामने नाकाम रहता हूँ। मुझे तो मिस्र जरूर जाना है जहाँ मेरी मोहब्बत है, और ये शादी तो मेरी सियासी चाल है। वेंटिडियस को एंटनी बुलाता है, उसे जरूरी पैगाम देता है और पर्थिया रवाना कर देता है। लैपिडस, मैसिनस और एग्रिपा जंग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मिस्र में क्लियोपैट्रा शार्मियन और ख्वाजा सरा मार्डियन से बातें कर रही है। वो पहले गाने की फरमाइश करती है, फिर गेंद से खेलने की, फिर दरिया से मछलियां पकड़ने का कहती है कि वो ऐसे ही मछलियां फांसेगी जैसे एंटनी को फंसाया। इटली से कासिद पैगाम लेकर आता है और खबर देता है कि एंटनी खैरियत से हैं। सीजर से उसकी दोस्ती हो चुकी है, मगर क्लियोपैट्रा गुस्से से पूछती है, मगर क्या? कासिद कहता है कि एंटनी ने सीजर की बहन ऑक्टेविया से शादी कर ली है। क्लियोपैट्रा कासिद को मारती है और बुरा भला कहती है। कासिद चिढ़का कर कहता है कि वो तो सिर्फ कासिद है, उसका शादी करवाने में तो कोई हाथ नहीं है कि उसको मारा जा रहा है। क्लियोपैट्रा के खंजर निकालने पर वो भाग जाता है। क्लियोपैट्रा उसे दोबारा बुलाकर बार बार पूछती है, मगर हर बार यही जवाब है कि शादी हो चुकी है। क्लियोपैट्रा अफसोस करती है कि उसने सीजर को बुरा भला कहा और एंटनी की तारीफ की। वो कहती है कि फौरी मालूम करो कि क्या ऑक्टेविया बहुत खूबसूरत है, उसका हुलिया कद वगैरह कैसा है। वो जाती है। एक दरवाजे से पॉम्पी और मैनस दाखिल होते हैं और दूसरे दरवाजे से ऑक्टेवियस सीजर, मार्क एंटनी और लैपिडस, एनोबार्बस और मैसिनस बहुत से सिपाहियों के साथ आते हैं। फैसला किया जा रहा है कि क्या जंग करनी है या शराइत पर सौदा किया जा सकता है। पॉम्पे कहता है कि आप लोगों ने जिस तरह जूलियस सीजर की मौत का इंतकाम लिया है, उसी तरह मैं अपने बाप की मौत का बदला लेने का ख्वाहिशमंद हूँ, जिसके लिए मेरे जंगी जहाज तैयार हैं। आपकी तरफ से शराइत यह है कि मुझे सिसिली और सार्डिनिया के जजायर दे देंगे और उसके अवज मैं समंदर से जंगी जहाज हटा लूँ और एक खास मिकदार में आपको खाने की अशिया, गेहूं वगैरह भेजूं। मैं तो सुलह के लिए आया था, मगर एंटनी की बातों ने मुझे गुस्सा दिला दिया है। जबकि सीजर और आपके भाई की लड़ाई के वक्त आपकी वालदा मेरे पास सिसिली तशरीफ लाई तो मैंने उनके शायान शान इज्जत की। एंटनी को ये बात याद है और वो इस बात के लिए पॉम्पी का शुक्रिया अदा करता है। पॉम्पी शराइत को तस्लीम कर लेता है।
मैनस अपने आप से कहता है कि पोम्पी, आपके वालिद ये शराइत कभी भी ना मानते। वो सब दावतों का एहतमाम करते हैं। मैनस और एनोबार्बस आपस में गुफ्तगू करते हैं कि अगरचे सीजर की बहन ऑक्टेविया में बहुत सी खसूसियात हैं, वो पहले मार्सेलस की बीवी थी मगर अब एंटनी की बीवी है। एंटनी से उसकी शादी का फैसला दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अगर एंटनी दोबारा मिस्र क्लियोपेट्रा के पास चला जाएगा तो सीजर और उसके दरमियान शदीद इख्तलाफात और लड़ाई भी हो सकती है, क्योंकि ये शादी एक सियासी चाल दिखाई देती है। वो जाते हैं। पोम्पी की कश्ती में एंटनी, लैपिडस और सीजर शराब नोशी की ज़ियाफत में शरीक हैं। थोड़ी देर बाद मैनस कहता है कि पोम्पी, इस वक्त जबकि आपके तीनों दुश्मन आपकी कश्ती पर हैं, उनकी कश्ती को थोड़ी दूर भेजकर उन्हें कत्ल कर देते हैं ताकि आपके हाथ तमाम दुनिया लग जाए। पोम्पी कहता है कि अगर वो ये काम बताए बगैर कर देता तो अच्छा था, मगर अब जानबूझकर ऐसा करना धोखा है और उसने हमेशा पैसे पर शराफत को तरजीह दी है, इसलिए अब ऐसा मुमकिन नहीं है, लिहाजा सबको शराब के मजे लेने दो। उधर वेंटिडियस शाम में सीलियस से बातें कर रहा है। उसने मार्कस क्रैसस की मौत का बदला ले लिया है और इलाका फतह कर लिया है। अब वो एंटनी को इतला भिजवा रहा है कि उनकी फतह हो चुकी है। मिस्र में क्लियोपेट्रा को बताया जा रहा है कि जिस औरत से एंटनी की शादी हुई है वो एक बेवा है, ना खूबसूरत है और ना लंबी। वो जिंदा से ज्यादा बेजान नजर आती है, चेहरा इतना गोल है कि बदनुमा नजर आता है। क्लियोपेट्रा ये सुनकर खुश होती है, कासिद को इनाम देती है और कहती है कि उस औरत में कोई अहम बात नहीं है। एंटनी अपने घर में अपनी बीवी ऑक्टेविया से कहता है कि उसका भाई हर एक से उसकी बुराई कर रहा है। ऑक्टेविया कहती है कि उसको दोनों अजीज हैं कि वो दोनों अब कभी दुश्मन ना बने। एंटनी उससे कहता है कि तुम अपने भाई के पास जाओ और उससे कहो कि वो अपनी हरकतों से बाज रहे। अगर ऐसा ना हो सके तो तुम्हें हम दोनों में से एक का इंतखाब करना पड़ेगा। अब तुम जाने की तैयारी करो। वो जाते हैं। एरोस और एनोबार्बस गुफ्तगू कर रहे हैं कि सीजर ने लैपिडस को ये कहकर कि पोम्पी से उसके खुफिया मरासिम हैं, उसको कैद कर लिया है और उसके हिस्से पर काबिज हो गया है। एंटनी इस वक्त सख्त गुस्से की हालत में बाग में इधर उधर घूम रहा है। वो एक तरफ तो लैपिडस से हमदर्दी रखता है और दूसरी तरफ उस फौजी को कत्ल करना चाहता है जिसके हाथों पोम्पी का कत्ल हुआ है। हम जंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं और सिलसिले में एंटनी ने बुलाया है। रोम में मैसिनस, एग्रिपा और ऑक्टेवियस सीजर बातें कर रहे हैं। सीजर कहता है कि सिकंदरिया अलेक्जेंड्रिया में एंटनी ने शहर के बीचों बीच सोने के 2 तख्त बिछवाए। एंटनी और क्लियोपेट्रा इस पर बैठे और एंटनी ने क्लियोपेट्रा को मिस्र की मलका बनाने के साथ साथ इससे मुख्तलिफ इलाकों की बादशाहत अता करके हमें जलील किया। उस वक्त वो नाजायज बच्चे भी उनके साथ थे जो क्लियोपेट्रा और एंटनी की अय्याशियों से पैदा हुए थे। रोम के बाशिंदे उन बातों से आगाह हैं, मगर उनका ख्याल है कि मैंने पोम्पी को सल्तनत में काबिज होकर एंटनी को उसका हिस्सा ना देकर और लैपिडस को भी उसका मकाम ना देकर उन सब से नाइंसाफी की है और उनकी जायदाद हथिया ली है। मगर असल में तो ये सब कुछ इसलिए हुआ था कि लैपिडस के जुल्म हद से बढ़ चुके थे और अब बाकी लोगों को भी उनका हिस्सा दिया जा सकता है। ऑक्टेविया वहां आती है। उसका भाई सीजर उसे बताता है कि एंटनी ने अपनी सल्तनत एक गंदी औरत के हवाले कर दी है और उसकी बहन से धोखा किया गया है। अच्छा हुआ जो वो एंटनी से अलहदा होकर वहां आ गई। एक्शियम के नजदीक एंटनी की लश्करगाह में क्लियोपेट्रा मौजूद है और वो एंटनी के साथ जंग में शरीक होना चाहती है। एनोबार्बस उसे मना करता है कि रोम के लोग तो पहले ही कहते हैं कि इस जंग का निज़ाम तो ख्वाजा सरा और आपकी खिदमत गुजार कर रही हैं। दूसरी, आपकी शमूलियत की वजह से एंटनी की तवज्जो आपकी तरफ रहेगी। क्लियोपेट्रा जंग में शामिल होने पर इसरार करती है। एंटनी आता है। उसका जर्नैल कैनिडियस कहता है कि खुश्की पर अच्छी लड़ाई की जा सकती है क्योंकि समुद्री लड़ाई का सीजर को बहुत ज्यादा तजर्बा है। एंटनी पानी में जंग के लिए बाजिद है
اسے بار بار سمندر میں لڑنے سے روکا جاتا ہے مگر وہ انکار کر دیتا ہے۔ وہ جاتا ہے تو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ دراصل یہ عورتوں کی حکمرانی ہے کہ اس طرح غلط فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ وہ جاتے ہیں۔ ایکشیم میں سیزر ٹورس کو حکم دیتا ہے کہ جب تک سمندری جنگ ختم نہ ہو جائے خشکی پر کارروائی نہ کی جائے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ دوسری طرف اینٹنی اپنی فوجیں پہاڑی کے دوسری طرف لگا رہا ہے تاکہ دشمن کی کشتیوں پر نظر رکھی جا سکے اور وقت کے مطابق بہتر فیصلے کیے جائیں۔ www.server555.com The Tragedy of Antony and Cleopatra ولیم شیکسپیئر۔ پیشکش سید عرفان علی۔ مفت ڈاؤن لوڈ کریں www.server555.com 3 سمندر میں لڑائی شروع ہوتی ہے مگر کچھ دیر بعد انوباربس اور سکارس گفتگو کرتے ہیں کہ لڑائی میں برابر کا مقابلہ تھا مگر کلیوپیٹرا اپنے جہازوں کے ساتھ بھاگ گئی اور اسے بھاگتا دیکھ کر اینٹنی بھی جنگ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے چلے گئے۔ اینٹنی کا جرنیل کینیڈیس بھی وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے زیادہ ذلت نہیں ہو سکتی جب اینٹنی بے شرمی سے بھاگ گیا اور اسی وجہ سے ہمیں بھی پیچھے ہٹنا پڑا۔ وہ مزید کہتا ہے کہ اس سے پہلے 6 بادشاہوں نے سیزر کے آگے ہتھیار ڈالے ہیں، سو میں بھی اپنی افواج سیزر کے حوالے کرتا ہوں۔ انوباربس کا خیال ہے کہ اسے ابھی بھی اینٹنی کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ کلیوپیٹرا کے محل میں اینٹنی سخت شرمندہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ ایک کشتی میں خزانہ بھرا ہوا ہے، اسے آپس میں تقسیم کر لو اور مجھ جیسے بزدل کا ساتھ چھوڑ دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ کلیوپیٹرا آتی ہے۔ اینٹنی کہتا ہے کہ ایک وقت تھا جب اس نے بروٹس کو قتل کیا اور دشمنوں کو تباہ کیا مگر آج میں نے ذلیل حرکت کی ہے اور اپنے آپ سے شرمسار ہوں۔ کلیوپیٹرا کہتی ہے کہ اس کی خوفزدہ کشتیاں بھاگیں مگر یہ اندازہ نہیں تھا کہ اینٹنی بھی پیچھے چلا آئے گا۔ اینٹنی کا کہنا تھا کہ اس کا دل تو کلیوپیٹرا کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ کلیوپیٹرا روتی ہے اور معافی مانگتی ہے۔ اینٹنی کہتا ہے کہ مت رو کیونکہ تمہارا ایک ایک آنسو تو ہماری ایک ایک سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے، بس مجھے ایک بوسہ دو۔ کیا میرے بچوں کا استاد جو میرا پیغام لے کر سیزر کے پاس گیا تھا واپس آ گیا ہے؟ وہ جاتے ہیں۔ قاصد کے بجائے اینٹنی کے بچوں کا استاد یوفرونیس، جسے کم حیثیت خیال کیا گیا ہے، اینٹنی کا پیغام لے کر سیزر کے پاس آیا۔ اینٹنی نے اس سے درخواست کی تھی کہ اسے ایک عام شہری کی حیثیت میں مصر میں رہنے دیا جائے اور کلیوپیٹرا کی خواہش تھی کہ اگرچہ حاکم سیزر ہے مگر بادشاہت کا تاج اس کی اولاد میں چلنے دیا جائے۔ سیزر جواب دیتا ہے کہ اگر کلیوپیٹرا اینٹنی کو اپنے ملک سے نکال دے یا اسے مروا دے تو اسے مرتبہ عطا کیا جائے گا۔ یوفرونیس کے جانے کے بعد وہ تھیریس کو کہتا ہے کہ تم کلیوپیٹرا کو ہر قسم کا لالچ دے کر اینٹنی کے ہاتھوں سے نکال کر یہاں لے آؤ اور منہ مانگا انعام پاؤ اور ساتھ میں اینٹنی کے حالات اور سوچ کا بھی پتہ چلاؤ کہ اس کے ان حالات میں آگے کے کیا خیال ہیں۔ کلیوپیٹرا اپنے محل میں انوباربس سے پوچھتی ہے کہ ناکامی کا ذمہ دار اینٹنی ہے یا میں؟ وہ جواب دیتا ہے کہ اینٹنی، کیونکہ آپ کے عشق میں وہ جو بازی جیت رہا تھا اسے چھوڑ کر آپ کے پیچھے چلا آیا۔ اینٹنی یوفرونیس اس قاصد کے ساتھ جسے اس نے روم بھیجا تھا اس کے ساتھ آتا ہے۔ وہ کلیوپیٹرا کو سیزر کے پیغام کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یعنی اینٹنی کو قتل کر دیا جائے تاکہ سیزر ملکہ کو ہر قسم کی آسائشیں دے۔ وہ سیزر کو پیغام بھجواتا ہے کہ تمام دولت اور سپاہیوں کو ایک طرف ہٹا کر اینٹنی سے تلوار کا مقابلہ کر کے دیکھ لے۔ اس کے جانے کے بعد کلیوپیٹرا کہتی ہے کہ دنیا کا طاقتور ترین انسان سیزر کیا پاگل ہے کہ اینٹنی جیسے فقیر سے مقابلہ کرنے چلا آئے۔ شاید اینٹنی اپنے حالات کی وجہ سے پاگل ہو چکا ہے جو ایسے خط لکھ رہا ہے۔ تھیریس قاصد جو کہ سیزر کی طرف سے بھیجا گیا ہے کلیوپیٹرا کے پاس آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سیزر کو علم ہے کہ آپ اینٹنی سے محبت نہیں رکھتی مگر خوف کی وجہ سے اس کے ساتھ ہیں اور وہ سیزر چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر فرمائش پوری کریں مگر اس صورت میں جبکہ آپ اینٹنی سے ہر قسم کا تعلق توڑ کر علیحدہ ہو جائیں اور سیزر کے زیر سایہ آ جائیں۔
क्लियोपेट्रा कहती है कि उसका ताज सीजर के कदमों में है और सीजर का हर हुक्म माना जाएगा। थीरियस क्लियोपेट्रा का हाथ चूमने की इजाजत मांगता है। क्लियोपेट्रा कहती है कि सीजर के बाप भी अपनी हर नई फतह से पहले जब गौर व खौस कर रहे होते थे तो मेरे हाथ के शदीद बोसे लेते। एनुबार्बस, जो क्लियोपेट्रा की बातें सुन रहा था, वहां से जाता है और एंटनी को वहां ले आता है। एंटनी सख्त गुस्से की हालत में सीजर के कासिद थीरियस को कोड़े मारने का हुक्म देता है और क्लियोपेट्रा को भी ताने देता है कि उसने हर आदमी से अपनी शहवत पूरी की। मुलाजिम थीरियस को लाते हैं। एंटनी उससे कहता है कि ये कोड़े जाकर सीजर को दिखाए और आज के बाद कभी किसी औरत का बुरा हाथ देखकर बोसा लेने की कोशिश ना करे। क्लियोपेट्रा एंटनी से दोबारा अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। एंटनी कहता है कि उसकी फौजें दोबारा सीजर से मुकाबले के लिए इकट्ठी हो रही हैं। मैं मैदान जंग में दोबारा कामयाबी हासिल कर लूंगा, मगर इससे पहले तमाम अफसरों को शराब की दावत दूंगा और आज रात क्लियोपेट्रा के साथ गुजारूंगा। एनुबार्बस कहता है कि बुरे हालात की वजह से एंटनी अपने से बहुत बड़े दुश्मन को धमकियां दे रहा है, तो उसे यहां से निकल जाना चाहिए। सीजर अपने कासिद दोस्त को कोड़े लगने की वजह से सख्त तैश में है और एंटनी के खिलाफ आखिरी जंग की बातें करता है। दूसरी तरफ एंटनी अपने खिदमतगुजारों से कहता है कि कल वो खुश्की और समंदर में 2 जंगें लड़ेगा और शायद फिर कभी भी उन्हें नजर ना आए, लिहाजा वो आज रात उसकी बहुत खिदमत करें। खिदमतगुजार सच्चे दिल से उसके साथ हैं। महल के बाहर सिपाही भी दूसरे दिन जंग और उसमें फतह की बातें करते हैं। उन्हें पुरस्रार मौसीकी की आवाजें जमीन के अंदर से सुनाई दे रही हैं, जिन्हें सुनकर वो परेशान हैं और वो जाते हैं। एंटनी लड़ाई के लिए तैयार है। फौज उसका इंतजार कर रही है, मगर एनुबार्बस उसका साथ छोड़कर सीजर के पास चला गया है। वो अपना सामान छोड़ गया जिसे एंटनी के हुक्म पर उसके पास भेज दिया गया, और एंटनी ने मजीद कहा कि उसके हालात इतने खराब हैं कि अच्छे इंसान भी उसका साथ छोड़ रहे हैं। सीजर भी जंग के लिए आमादा है। उसका इरादा है कि जो लोग एंटनी को छोड़ आए हैं उनको पहले एंटनी के सामने लाया जाए ताकि वो अपना गुस्सा उन पर निकाले। एनुबार्बस अपने आप से कह रहा है कि उसने एंटनी को छोड़कर अच्छा नहीं किया और सख्त गलती की है, क्योंकि सीजर उन लोगों का हशर अच्छा नहीं करता जो एंटनी को दगा देकर उसके पास आते हैं। उसके पास वो सामान भी पहुंच गया जो वो एंटनी के पास छोड़ आया था। जब मेरी गलती का इनाम इतना बड़ा है तो एंटनी मुझे मेरी तारीफ में कितना बड़ा इनाम देता। एंटनी तो अजीम है और मैं जलील। जंग के मैदान में भी एंटनी और स्कारस दिलेरी से लड़े और सीजर की फौज भागने पर मजबूर हो गई। क्लियोपेट्रा और एंटनी फतह का जश्न मनाते हैं और दूसरे दिन भी जंग का इजहार करते हैं। एनुबार्बस को अफसोस है कि उसने एंटनी से दगा किया और इसी गम में वो मर जाता है। एंटनी कहता है कि आज दुश्मन समंदर में लड़ेगा क्योंकि खुश्की पर पोल लड़ने के काबिल नहीं है, मगर हम तो हवा और आग पर भी उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। सीजर जमीन पर मोर्चे तैयार कर रहा है। उसके ख्याल में एंटनी की फौज समंदर में ज्यादा ध्यान दे रही है। स्कारस परेशान है कि नजूमी कुछ भी नहीं बता रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ गलत है। एंटनी के ख्यालात एक बार फिर बहादुरी और क्लियोपेट्रा के दरमियान मुंतशिर हैं। एंटनी आता है और कहता है कि क्लियोपेट्रा ने फिर दगाबाजी की और इसके बहरी जहाज सीजर से मिल गए। उस जादूगरनी ने मुझसे फिर फरेब किया। क्लियोपेट्रा आती है मगर एंटनी उससे गुस्से में वापस भेज देता है। शार्मियन क्लियोपेट्रा को मशवरा देती है कि वो अपने आप को मकबरे में बंद कर लें और ये मशहूर कर दें कि क्लियोपेट्रा ने खुदकशी कर ली है। क्लियोपेट्रा ऐसा ही करती है। एंटनी एरोस से कह रहा है कि क्लियोपेट्रा की वजह से वो जिंदा था, अब उसने सीजर से मिलकर बेवफाई की है, लिहाजा उसका जिंदा रहना बेकार है। मार्डियन ख्वाजा सरा आकर बताता है कि क्लियोपेट्रा ने एंटनी का नाम लेते हुए खुदकशी कर ली। इस खबर से एंटनी सख्त परेशान हुआ क्योंकि क्लियोपेट्रा ने मरकर सीजर को शिकस्त दी और मुझे शर्मिंदा किया। एरोस, अब तू मुझे अपनी तलवार से मार दे ताकि सीजर को शिकस्त हो। एरोस बार बार मना करता है और आखिरकार एंटनी को मारने के बजाय अपने आप को खत्म कर लेता है।
اب اینٹونی خود اپنے آپ کو تلوار مارتا ہے، ضرب شدید تھی مگر وہ مرتا نہیں۔ وہ اپنے خدمت گزاروں کو کہتا ہے کہ اسے مار دیا جائے۔ تمام لوگ اینٹونی کو مارنے سے انکار کر دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ کلیوپیٹرا کا خدمت گزار آ جاتا ہے اور حقیقت سے آگاہ کرتا ہے کہ کلیوپیٹرا ابھی زندہ ہے اور اس نے خودکشی کا صرف اس لیے کہا تھا کہ آپ اینٹونی کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اینٹونی کہتا ہے کہ اسے کلیوپیٹرا کے پاس لے جایا جائے۔ اینٹونی کو لوگ اٹھا کر لاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اینٹونی کو سیزر فتح نہیں کر سکا بلکہ اینٹونی نے ہی اپنے اوپر فتح حاصل کی ہے۔ وہ کلیوپیٹرا سے آخری وقت میں آخری بوسہ مانگتا ہے۔ وہ خواہش کرتی ہے کہ کاش اینٹونی اس کے بوسوں سے دوبارہ جی اٹھے۔ اینٹونی کہتا ہے کہ وہ بزدلوں کی نہیں بلکہ بہادروں کی موت مر رہا ہے۔ وہ مر جاتا ہے۔ کلیوپیٹرا کہتی ہے کہ زمین کا سب سے بہادر انسان مر گیا۔ پھر وہ کہتی ہے کہ رومن بہادر ہوتے ہیں تو غم کے بجائے اعزازات کے ساتھ اس بہادر سپاہی کو دفن کریں۔ سیزر حکم دیتا ہے کہ اینٹونی کو گرفتار کیا جائے مگر اسے اینٹونی کی وہ تلوار دی جاتی ہے جس سے اس نے بہادروں کی طرح خودکشی کی تھی۔ سیزر کہتا ہے کہ اینٹونی کی موت سے زمین کو ہلنا چاہیے تھا کیونکہ یہ تو آدھی دنیا کی موت ہے، اور اس خبر سے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ وہ روتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اینٹونی تو میرا بھائی تھا، سلطنت میں میرا حصے دار، میرا دوست، میرا بازو، مگر تقدیر نے ہمیں دوست نہ بننے دیا۔ مصر سے ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ کلیوپیٹرا اپنے مقبرے میں آپ کے احکامات کی منتظر ہے۔ سیزر کہتا ہے کہ ان کی عزت کا خیال رکھا جائے گا اور جلد ہی ہمارے قاصد ان سے ملیں گے۔ وہ پروکیولیس کو ملکہ کلیوپیٹرا کے پاس بھیجتا ہے کہ ملکہ کو حوصلہ دے، کیونکہ اس وقت اس کی خواہش تھی کہ ملکہ کلیوپیٹرا روم میں آ کر اس کے جشن کو چار چاند لگائے۔ پروکیولیس کے جانے کے بعد گیلس بھی کلیوپیٹرا کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ پروکیولیس کلیوپیٹرا سے مل کر سیزر کا پیغام دیتا ہے کہ ان کی ہر بات مان لی جائے گی اگر وہ سیزر کی اطاعت کریں۔ کلیوپیٹرا کہتی ہے کہ وہ تو سیزر کی غلام ہے اور ان سے مل کر خوشی ہوگی۔ گیلس بھی وہاں پہنچ جاتا ہے جس کا رویہ قدر سخت ہے اور کہتا ہے کہ سیزر کے وہاں آنے تک کلیوپیٹرا پر نظر رکھی جائے۔ اس کے جانے کے بعد کلیوپیٹرا خود کو خنجر سے مارنے کی کوشش کرتی ہے مگر پروکیولیس خنجر چھین لیتا ہے۔ کلیوپیٹرا کہتی ہے کہ وہ غلام اور قیدی بن کر نہ تو سیزر کے دربار میں جائے گی اور روم کی سڑکوں پر عوام کے طعنوں کو برداشت بھی نہیں کرے گی۔ پروکیولیس اسے سیزر کے اچھے رویے کا یقین دلاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ کلیوپیٹرا سیزر کے دوست ڈولابیلا سے اینٹونی کی تعریفیں کرتی ہے۔ سیزر وہاں آتا ہے۔ کلیوپیٹرا جھک کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ وہ کلیوپیٹرا سے رحم دلی سے پیش آتا ہے۔ کلیوپیٹرا اسے اپنی قیمتی اشیاء کی فہرست پیش کرتی ہے اور اپنے خزانچی کو تصدیق کے لیے کہتی ہے کہ اس کے پاس ان چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں، مگر خزانچی کہتا ہے کہ کلیوپیٹرا جھوٹ بول رہی ہے۔ کلیوپیٹرا اس پر غصہ کرتی ہے کہ سیزر اس کی عزت کر رہا ہے اور ایک ملازم اس پر جھوٹ کا الزام لگا رہا ہے۔ سیزر کہتا ہے کہ جو چیزیں وہ کلیوپیٹرا رکھنی چاہے وہ رکھ سکتی ہے اور کوئی حساب نہیں لیا جائے گا اور سکون سے اپنی نیند پوری کرے۔ اس کے جانے کے بعد کلیوپیٹرا کہتی ہے کہ وہ ہمیں احسان مند کرنا چاہتا ہے۔ ڈولابیلا سے اسے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ 3 دن کے اندر کلیوپیٹرا اور اس کے بچے مصر سے روانہ کر دیے جائیں گے۔ کلیوپیٹرا اس معلومات کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ روم میں اینٹونی کا مذاق اڑایا جائے گا اور کلیوپیٹرا کو طوائف کے روپ میں پیش کیا جائے گا۔ وہ کہتی ہے کہ یہ تمام منصوبے ناکام ہو جائیں گے۔ وہ بہترین کپڑے اور تاج منگواتی ہے۔ کلاؤن سے وہ سانپ کی ٹوکری لیتی ہے جس کے کاٹنے سے انسان بغیر تکلیف کے مر سکتا ہے۔ کلیوپیٹرا ملکہ مصر کا لباس پہنتی ہے، تاج کو سر پر رکھتی ہے۔ اسے اینٹونی کی آوازیں آ رہی ہیں جو اسے شاباش دے رہا تھا۔ وہ شارمین اور آئرس کا الوداعی بوسہ لیتی ہے۔ آئرس مر جاتی ہے۔ کلیوپیٹرا سانپ سے اپنے آپ کو ڈسواتی ہے اور وہ بھی مر جاتی ہے۔ شارمین کہتی ہے کہ اس ذلیل دنیا سے رخصت ہو کر ملکہ اب آرام کر رہی ہے، وہ ملکہ جس کی مثال دوبارہ نہ ملے گی۔ پہرے دار آتے ہیں کہ سیزر کا کلیوپیٹرا کے لیے پیغام ہے۔ شارمین بھی اپنے آپ کو سانپ سے ڈسوا کر خود کو ختم کر لیتی ہے۔ سیزر بھی وہاں آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس چیز کا اسے اندیشہ تھا وہ اس کے آنے سے پہلے سچ ثابت ہو گیا اور تو نے ثابت کر دیا کہ تو ہی اصل بادشاہ تھی۔
پہرے دار بتاتے ہیں کہ ایک آدمی کچھ لے کر آیا تھا. ایک اور آدمی بتاتا ہے کہ کلیوپیٹرا کے سینے اور بازو پر خون کا نشان ہے. سیزر کہتا ہے کہ کلیوپیٹرا کے مالج سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ ملکہ موت کے آسان طریقے دریافت کرتی تھی، یعنی اس کی موت سانپ کے کاٹنے سے ہوئی ہے. اب اس کی لاش کو اینٹونی کے قریب دفنایا جائے گا کیونکہ ان سے زیادہ محبت کرنے والے پوری دنیا میں نہ ملیں گے. ہم اپنی فوج کے ساتھ اور تمام رسومات کے ساتھ ان کو دفن کریں گے. www.server555.com